Hello everyone, welcome to our channel Mode of Classes. In last video, I told you about the important question of literature which were related to your chapters. In this video, I am going to tell you something about the questions related to grammar, which is very important for you. In this lesson, we will learn the BA program second year and final English language A. All questions are based on grammar portion. So I have some question and I want to tell you something that when you see your question, when you see your question paper, so you will see there 6 questions. The first question related to your chapter, the second question related to your chapter's question also. These are the long questions, and the third question is related to passage. So passage you have to find out the question and answers. In fourth question you will have grammar. In fifth question you will see also grammar, but in the last, in sixth question you will see some letter and speech and other things. So now let's start. So I have the question: give antonyms, word opposite in meaning. Antonym means words opposite in meaning, यानी कि ऐसे शब्द एक दूसरे से विपरीत होते हैं. Of the word given below to. ये 10 questions होते हैं. आपको 10 आपको words दिए जाएंगे. That you have to give opposite meanings. Like accept, question, hold, clever, allow, exit, rural, negative, optimal and export. अब आपको इनके नेगेटिव पॉजिटिव आपको जो वर्ड्स हैं वो आपको अपोजिट देने हैं. लाइक डेट अगर एक्सेप्ट है तो उसका अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन है तो उसका अपोजिट क्या होगा, लाइक आंसर. बोल्ड का, क्लेवर का क्या होगा, डल. सो आपको इनके अपोजिट मीनिंग्स देने हैं. In the next question, complete the following sentence by filling in the blanks by choosing the correct word from the bracket. Complete the following sentence. आपको जो sentence है इसे complete करना है by filling in the blanks by choosing the correct word. ये जो fill in the blanks दिए हुए हैं इनमें आपको ये जो words दिए हैं इनको correctly नहीं. ये जो है वो समानार्थी word शब्द होते हैं इंग्लिश में. जैसे कि जब इनको आप pronounce करोगे, when you will pronounce these words, definitely you will have a same pronunciation like wood and wood. In this way, right and right. Here and you see also here. So ये जो pronounce करने वाले word हैं ये pronounce करते हैं same sound देते हैं. So आपको इसे fill करना है in the blanks में like every day he dash chop some dash in forest. इसका सबसे easy तरीका क्या है? You have to urge on object. ये word आपको object के according fill करना है. If I talk chop and here forest means जंगल, तो डेफिनेटली यहाँ पे वुड आ जाएगा. एंड ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वुड यहाँ पर सेंटेंस होगा. एवरी डे ही वुड चॉप सम वुड इन फॉरेस्ट. इन द सेम वे हियर ही यूजेस हिज डैश हैंड टू डैश. अब यहाँ पे राइट है और राइट है. ही यूजेस हिज राइट हैंड टू राइट. इन द सेम वे द beggar who was carrying a dash of water looked very. तो आपको पेज में फिल करना है. The cut in his dash look a long time to heal, और heal में से आ जाएगा. In the same way the person who delivers the dash is a dash. अब उसके बाद देखो एक मेल है और यहाँ पे मेल, तो ये होगा the person who delivers the mail is a mail. In the next question, from the word given the box. अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं बॉक्स में. बिलो फिल द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. इनको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन. नाउ आई टेल यू व्हाट इज द प्रीपोजिशन एंड हाउ टू फिल इन द क्वेश्चन. व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन ऑब्जेक्ट से पहले होती है. अब इनको फिल करते टाइम आपको अपने सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है मोस्टली. लाइक इफ आई टेल यू Do you prefer mangoes dash oranges? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? At, to, in, of, for, on, across and by. Definitely आपको यहाँ पे to यूज करना है. I am very interested dash music. तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ किसमें? म्यूजिक में. तो मैं को प्रोजन में in बोलते हैं. In the same way the patient died dash टाइफाइड. अब यहाँ पे आप देखोगे ऑफ, ये एक डेफिनेशन होती है कि जब भी बीमारी से कोई मरता है तो बीमारी से जो से साउंड है उसके लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रीपोजिशन. इन द नेक्स्ट, सरोज ऑलवेज जंप डैश
हर सन्स डिफेंस, डिफेंस का मतलब उसको ग्रुप, सो सरोज ऑलवेज जंप, जो सरोज है वो हमेशा बीच में आ जाती है, फॉर हर सन्स डिफेंस, अपने बच्चे के बचाव के लिए। नेक्स्ट इज केडिया क्रिटिसाइज रूपसिंह, केडिया क्रिटिसाइज करता था इसको, रूपसिंह को, डैश एवरीथिंग दैट ही डिड, उस सब के लिए जो उसने किया, तो यहां पर हम फोर लगा देंगे, के लिए को क्या बोलते हैं, फोर। सो इन दिस वे यू कैन फिल ऑल द प्रीपोजिशन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी fill the blanks with the appropriate word given in the box। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, you can see who, whose, whom, which, where, when, what, these all are WH words, we call it WH family। So my brother is in the army, dash is on visit to Thailand। यहाँ पे आएगा who, क्योंकि जब भी हम पर्सन की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो जो के लिए हम who का इस्तेमाल करते हैं। The park to dash I usually go for jogging is very far, तो यहाँ पे which आ जाएगा, the park to which I usually। third, the lady to, अब third में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं whom the telegram was sent did not receive it। in the fourth, the beach is the place where I like to be in the summer, जहां मैं समर में जाना पसंद करता हूँ। and the next last is the man dog bit me dash claimed that I had killed his dog, यानी कि उस आदमी ने, जिस कुत्ते ने मुझे काटा था, उस आदमी ने ये क्लेम किया है कि मैंने उसके कुत्ते को मारा है। So definitely use, you can fill it. In the next question, complete the sentence given below using the word from the box। next आपको कुछ words दिए गए हैं बॉक्स में और आपको सेंटेंस में फिल करना है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा that how to fill the use some, any, all, none, few। मोस्टली ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड पे आते हैं। तो इस पे फर्स्ट है आई एम श्योर ही डजंट हैव डैश एविडेंस अगेंस्ट हिम। सी, एक तो होता है सम एंड फ्यू, सम और फ्यू ये कम के लिए यूज करते हैं। एनी का इस्तेमाल होता है, इसका मीनिंग होता है कोई। सो आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, ही डजंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम, मैं श्योर हूं कि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ। सेकंड में डैश ऑफ द विटनेस हैड एक्चुअली सीन जॉन फायर द गन, ऑल ऑफ द विटनेस had actually seen John's fire the gun। And third, she is going on a holiday with dash friends to Goa। Friends is a countable, you can write here few, कि वो कुछ दोस्तों के साथ कहाँ जा रही है, हॉलिडे पर। And the fourth, I have known her dash my life, you can say all my life। So you have to find out इनका मीनिंग आपको बताना चाहिए कि सम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, few का मीनिंग क्या होता है, and you know कि ये किस सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। And now after completing 4 and 5 questions, now we'll see 6. In this question, you have to write about letter, speech and other things. So let's see. Suppose you are Mr. Kedia of the Leader of Man। This is the chapter। मैंने last video में इसके कुछ question दिए थे which were important, जो मैंने बोला था कि आपके एग्जाम में आएंगे। So ये जो लेटर है वो आपके चैप्टर के कैरेक्टर के बेस पर यहाँ पे दिया गया है। So suppose you are Mr. Kedia, मान लो कि आप Mr. Kedia हो, the leader of man, this is the chapter of name, writing a letter to your friend who had visited you earlier। आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है जो अभी आपके यहाँ पे विजिट हुआ। In the letter में give an account of the happening at the New Year's party। जो न्यू ईयर पार्टी में जो भी कुछ हुआ था आपको अपने दोस्त को बाय लेटर ये सब समझाना है। सो लेटर का फॉर्मेट आप प्लीज अच्छे से पढ़ के जाएं, जो भी मिस्टेक होगी आपकी, अगर लेटर करेक्ट है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इजीली द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। सो दिस द लेटर। और या फिर अगर आप इसको ना करके कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसी में होगा सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द एनिमल स्कूल, लर्निंग कैन बी फन। इफ यू विल रीड योर चैप्टर, सो उसमें एक पार्ट है जहां पर कुछ एनिमल स्कूल स्टार्ट करते हैं। इट्स अ एग्जांपल, ओके। सो सपोज यू आर प्रिंसिपल ऑफ एनिमल स्कूल इन लर्निंग कैन बी फन, राइट अ लेटर टू अ डायरेक्टर। आपको एक लेटर लिखना है डायरेक्टर के लिए, हायर एजुकेशन एक्सप्लेनिंग, ये बताते हुए व्हाई द स्कूल फेल्ड टू टीच इट्स स्टूडेंट सक्सेसफुली, कि क्या रीजन था कि जो वहां के टीचर थे वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाने में
फेल्ड हो गए। सो ये जो लेटर आपको लिखना है एक टोटली बेस्ड होगा ऑन द चैप्टर, द नेम इज लर्निंग कैन बी फन। एंड आफ्टर दैट ये ए के आपको ये जो क्वेश्चन 6 होगा उसमें ए और बी होगा और दोनों ही और करके दिए जाएंगे। इन द बी मेक अ लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, कि आप 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए। यू वुड आस्क द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि जो आप पूछोगे अपने प्रिंसिपल से, जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इफ यू वर गिवन द चांस टू इंटरव्यू हिम एंड हर, अगर आपको मौका मिले आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने का, तो वो 10 क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए जो क्वेश्चन आप उससे पूछोगे। सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज WSMLU, टेंसेस एंड ऑल, और आपको ऐसे 10 क्वेश्चन रेडी करने हैं जो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछना चाहते हैं। ये कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इट्स अपॉन यू कि आप कैसे क्वेश्चन रेडी करते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना है, सो यू कैन सी राइट अ पैराग्राफ ऑन सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अर्बन इंडियन वुमेन। सो जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती हैं अर्बन इंडियन वुमेन के द्वारा, तो आपको वो अपने पैराग्राफ करनी है। नाउ सी ऐसे एंड पैराग्राफ थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनका फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग होता है, इनका कंटेंट भी थोड़ा अलग होता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीस थिंग्स कि जो भी 6 क्वेश्चन में है उनका फॉर्मेट आपको अच्छे से रेडी करके जाना है। सो वी हैड सम गुड क्वेश्चंस जो आप अपने एग्जाम में देखोगे, एंड डेफिनेटली ज्यादातर इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट सम क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर से रिलेटेड थे। These were 12 questions, and now I have told you about grammar questions जो आपके I mean 4 या 6 questions होंगे totally. So thank you guys. For more updates, subscribe our channel and press the bell icon. अगर आपको इनके आंसर्स डिटेल में चाहिए, so you can contact on this number. Thank you. Take care.